تو عبادت کو اگر دیکھیں تو یہ عربی زبان کے لفظ عبد سے مشتق ہے اور اس کا معنی آخری درجے کی عاجزی و انکساری ہے۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ عبد سے نکلا ہوا ہے اور اس کا معنی آخری درجے کی عاجزی و انکساری ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں العبادت ابلغ منها لانها آیت التذلل، وہ کہتے ہیں کہ عبادت عاجزی و فروتنی کی انتہا کا نام ہے، کہ بندہ انتہائی عاجزی کرے، خود کو انتہائی حقیر سمجھے۔ یہ لفظی معنی ہے عبادت کا۔ اصطلاحی معنی کو اگر دیکھیں تو شریعت اسلامی کی اصطلاح میں عبادت صرف ایسے فعل کا نام ہے، ایسے کام کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی عبادت کے لیے تعظیم، عاجزی اور فروتنی کے اظہار کی خاطر صادر ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کو معبود رکھیں گے، کسی کی معبود ہونے کا اعتقاد رکھیں گے۔ اصطلاحی معنی یہ کہ صرف ایسے فعل کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے کسی کو معبود سمجھے کہ فلاں، جس طرح اللہ کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم، اس کے لیے عاجزی اور اس کے لیے فروتنی کے اظہار کی خاطر صادر ہو، ایسے فعل کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ مطلب جو کام ایک بندہ ایک ہستی کو اپنا معبود سمجھے اور اس ہستی کو معبود سمجھتے ہوئے اسی ہستی کی تعظیم، عاجزی اور فروتنی کے لیے جو کام ہو رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے جو پہلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف کی اصطلاحوں میں عبادت بھی بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں بہت کثرت سے آیا ہے اور اس کے معنی میں نہایت باریکی ہے۔ اس کی جو معنی ہے اس میں انتہائی باریکی ہے۔ اطاعت، تعظیم، عبادت، ان تینوں میں نہایت لطیف فرق ہے، معمولی سا فرق ہے ان تینوں میں۔ بعض لوگ اس نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے، ہر تعظیم کو بلکہ ہر اطاعت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا مفہوم، اس کا مقصود ہے وہ بہت غور سے سنیے۔ دیکھیں، عبادت عبد سے بنا ہے، عبادت بنا ہے عبد سے، بمعنی بندہ۔ عبادت کی لغوی معنی ہے بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا، جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا، خود کو بندہ بنانا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ اور ایک معبود کو آپ الہ مانو گے، ایک معبود کو اپنا رب مانو گے، ایک معبود کو اپنا خدا مانو گے۔ مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم کی بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی، کہ انتہائی تعظیم، عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ انتہائی تعظیم کو، اور اسی طرح انتہائی عاجزی بھی اس میں ہے کہ انتہائی عاجزی کو عبادت کہتے ہیں۔ دونوں طریقے درست ہیں، کیونکہ عابد کی انتہائی عاجزی سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے، اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ عابد، عبادت گزار بندہ جتنی زیادہ انتہائی عاجزی کرے گا اتنی معبود کی تعظیم لازم ہوگی، اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم ہے کہ ہم معبود کی انتہائی تعظیم کریں گے، اور عابد جو عبادت گزار بندہ ہے وہ معبود کے مقابلے میں انتہائی عاجزی اختیار کرے گا۔ انتہائی تعظیم کی حد یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جائے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہے، اور اپنی ایسی عاجزی کی جائے
जिससे नीचे कोई दर्जा मकसूद न हो। इसलिए इबादत की शर्त यह है कि बंदगी करने वाला माबूद को इलाह और अपने को बंदा समझे। ये समझकर जो ताजीम भी उसकी करेगा इबादत होगी। शर्त क्या है इबादत की? कि जो बंदगी करने वाला होगा, बंदगी करने वाला वो माबूद को अपना इलाह समझेगा, अपना रब समझेगा, और खुद को क्या समझेगा? इंतहाई कमजोर। अगर उसे इलाह नहीं समझता बल्कि नबी या वली या बाप या उस्ताद या पीर या हाकिम या बादशाह समझकर ताजीम करे तो उसका नाम इताअत होगा, इबादत नहीं होगा। उसको हम इताअत कहेंगे, इबादत नहीं कहेंगे। तो फिर ताजीम ये होगा, इबादत ना होगा। गरज के इताअत व ताजीम तो अल्लाह ताला और बंदों सबकी हो सकती है। इताअत अल्लाह की भी हो सकती है, बंदों की भी हो सकती है। ताजीम अल्लाह की भी हो सकती है, बंदों की भी हो सकती है। लेकिन इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की हो सकती है, बंदे की किसी भी नहीं सूरत में नहीं हो सकती। अगर बंदे की इबादत की तो शिर्क हो गया, और अगर बंदे की ताजीम की तो जैसा बंदा वैसा उसकी ताजीम का हुक्म। माँ बाप है तो माँ बाप की एक तरह से ताजीम, वालिदैन है उनकी और तरह से ताजीम, असातिज़ा है उनकी और तरह से ताजीम, और बुजुर्ग लोग हैं उनकी और तरह से ताजीम, बड़े भाई हैं, बड़े दोस्त हैं उनकी और तरह से ताजीम। तो इसी सूरत में बंदे की सूरत के साथ ताजीम, कोई ताजीम कुफ्र है, कोई ताजीम कुफ्र है। जैसा जो गंगा जमुना लोग उसकी ताजीम करते हैं, या होली की करते हैं, या दिवाली की ताजीम करते हैं, तो ये कुफ्र है, उसकी ताजीम नहीं करेंगे। कोई ताजीम ईमान है, जैसे पैगंबर की ताजीम ईमान है, कोई ताजीम सवाब है और कोई गुनाह। तो ताजीम को समझेंगे। बाज़ औक़ात आप ताजीम करेंगे तो आप कुफ्र में चले जाएंगे। जैसे अगर आप गंगा जमुना की ताजीम करेंगे, या होली की करेंगे, या दिवाली की ताजीम करेंगे तो कुफ्र में चले जाएंगे। इसी तरह अगर इस सूरत में हम देखें, कभी अगर हम ताजीम करेंगे तो ऐन इबादत है। अब पैगंबर की ताजीम ऐन इबादत है, अल्लाह की ताजीम वो सवाब है। तो ये ईमान है, अल्लाह की ताजीम और पैगंबर की ताजीम ये ईमान है। इसीलिए कुरान करीम में इबादत के साथ हमेशा अल्लाह ताला या रब या इलाह का जिक्र है। जब भी अल्लाह ने कुरान में इबादत का जिक्र फरमाया है तो या अल्लाह ताला का जिक्र है, या रब का जिक्र है, या इलाह का जिक्र है। और इताअत व ताज़ीम के साथ अल्लाह ताला का भी जिक्र है, और नबी का भी, माँ बाप का भी, हाकिम का भी फरमाता है। इताअत में और ताज़ीम में अल्लाह ने माँ बाप को शामिल किया, नबी को भी शामिल किया है, हाकिम को भी शामिल किया। लेकिन जहां पे अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया वहां पे सिर्फ अल्लाह ताला का नाम जिक्र है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके रब ने फैसला फरमा दिया, वक़ज़ा रब्बुका, आपके रब ने फैसला फरमा दिया, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि उसके सिवा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ ihsan। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। नहीं कहा था मैंने उनसे मगर वो ही जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। एक और जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम, ए लोगों अपनी उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो इन जैसी सारी आयत, इबादत की आयतों में सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र होगा। जहां पे इबादत का तज़किरा आता है तो वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का तज़किरा और जिक्र उसके साथ आ रहा है। लेकिन इताअत व ताज़ीम में सबका जिक्र होगा। इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो रसूल की, और अपने में से हुक्म वालों की। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की फरमानबरदारी की उसने अल्लाह की फरमानबरदारी की। एक और जगह अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये वही परहेज़गारी है। अब लास्ट में आप लोगों को मैं एक फर्क समझाने लगा हूं, आप लोग इसको समझेंगे तो सारी जिंदगी आप लोग फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि इबादत और ताज़ीम किस चीज को कहते हैं। इबादत और ताज़ीम की फर्क में आप लोगों को समझाने लगा हूं कि इबादत और ताज़ीम में क्या फर्क है। तो आप इन फर्क को समझिए, फिर आप लोग कभी भी इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, इबादत का मफहूम बहुत वाज़ेह है, समझने के लिए इतना ही काफी है कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की ताज़ीम करना इबादत कहलाता है।
और अगर इबादत के लायक न समझे तो वो महज ताजीम होगी, इबादत नहीं कहलाएगी। जैसे नमाज में हाथ बांध कर खड़ा होना इबादत है, लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांध कर खड़ा होना उस्ताद, पीर या माँ बाप के लिए हो तो महज ताजीम है, इबादत नहीं। और दोनों में फर्क वही है जो अभी बयान किया है कि अगर इबादत की नीयत है, अगर क्या है, अगर आप उसको इबादत के लायक समझेंगे तो फिर ये इबादत होगी, और अगर आप उसको इबादत के लायक नहीं समझेंगे तो ये ताजीम होगी। जैसे आयत मुबारक है इय्याका नअबुदु, इससे मालूम होने वाली बातें क्या है? इस आयत में जमा की सिगह है, इय्याका नअबुदु, आयत में जमा की सिगह है, जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए, और दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फायदा ये है कि गुनाहगारों की इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह के महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती है। नीज ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इबादत को मदद तलब करने से पहले जिक्र किया गया, क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत की ज्यादा करीब है। तो पहले अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, फिर अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे, तो इबादत कबूल होगी, तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे और अल्लाह ताला हमारी हाजतों को वो पूरी फरमा देगा।